Hello, my dear friends. How are you all, students? Today, we will start our journey in the world of English grammar. So, are you ready, all of you? And today's our destination is clauses. It's a very simple term. Let's see. Okay? Come. Students, before I start explaining you what is the clauses, read the following sentence carefully and try to understand. The first sentence, I lost a blue pen. The first sentence is, I lost a blue pen. The second one, I lost a pen which is blue in color. In the first sentence, the group of words printed in the bold a blue pen, है ना, ये जो blue pen लिखा है bold words में, this forms a phrase, है ना, ये phrase है बेटा. Why? Because it does not have a finite verb. उसके पास finite verb नहीं है. अभी ये क्या नया टर्म आ गया, finite verb. Let's check. Finite verb क्या होता है? Finite verb बच्चा वो होता है a verb which shows time. A finite verb which shows time, or a verb which is limited by number, which is limited by person and the gender of the subject. And on the other hand, non-finite verb क्या होता है? Non-finite verb is a verb that does not show time, or a verb which is not limited by the number, which is not limited by the person, and the tense of the subject is known as the non-finite verb. Say for example, Neha writes letters. They write letters and we have written the letters. Here writes, write and written. ये तीनों finite verb है. And on the other hand, Raman tries to sing. We try to sing. They try to sing. ये to sing है, ये non-finite verb है. Why? Because ये जो to sing verb है ना, it does not show time. ये verb ऐसा है जो is not limited by the number of persons and the tense of the subject. Okay? बेटा ये non-finite verb है ना, non-finite verb. इसको आप लोग furtherly 3 टाइप में डिवाइड करते हो. One is infinitive, second one is gerund, and third one is participle. Okay? So, come to the topic. In first sentence इसको मैं phrase बोलता हूँ because इसके पास finite verb नहीं है. लेकिन second sentence देखो, I lost a pen which is blue in color. Which is blue in color has a finite verb. इसका finite verb है, कौन सा है? Is. Yes, correct. Is is the finite verb. ये आपको tense दिखाता है, प्रेजेंट टेंस शो करता है यहाँ पे. एंड अ सब्जेक्ट है बेटा विच इज ब्लू इन कलर. सो विच इज द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्लॉज है. सो क्लॉज का डेफिनेशन मैं इसके ऊपर से ही बना देता हूँ. व्हाट इज अ क्लॉज? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ क्लॉज इज व्हाट? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है. एंड वन मोर थिंग, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब. उसको एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है. सो बेटा 4 कंडीशन मिलती है मुझे यहाँ पे. नंबर 1, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नंबर 2, it forms as a part of sentence. Number 3, it has a subject. Number 4, it has a finite verb. So 4 कंडीशन चाहिए क्लॉज बनाने के लिए. Number 1, group of words. Number 2, ये group of word forms a part of sentence. And third one, it requires a subject. And fourth one, it requires a finite verb of its own. So बच्चा पार्टी, a clause is a group of words that forms parts of a sentence and it has a subject and a finite verb of its own. Now a clause जो होता है ना, a clause has only one finite verb चाहिए मुझे. 2 रहेगा तो नहीं होगा, एक ही चाहिए, only one. इन सेंटेंस बी देखो बेटा, I lost a pen which is blue in color. ये is one and only one finite verb है पूरे सेंटेंस में.
So this is a clause. Clear? Now बेटा एक यहाँ पे एक टर्म आया था, phrase, clause, sentence. तो let's see what is the difference between phrase, clause and you can say sentence. So here is a difference between the sentence, clause and phrase. See what is sentence. Sentence क्या है? A sentence is a group of words that makes complete sense and has at least one finite verb. A phrase forms a part of sentence and a clause forms a parts of sentence too. एक सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस में बेटा कंप्लीट सेंस होता है और एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब मिलता है सेंटेंस में. लेकिन फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं है, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं है. क्लॉज में, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना. क्लॉज इज, 4 कंडीशन थी ना क्लॉज की. फाइनाइट वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड चाहिए एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस भी होना चाहिए. सेंटेंस क्या है? एक एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब. फ्रेज क्या है? इट डज नॉट हैव फाइनाइट वर्ब, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट. देन क्लॉज में क्या होता है? इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. बेटा देखो, चेक करो यहाँ पे, सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट होना चाहिए और क्लॉज में एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए. इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. सेंटेंस, इट कैन स्टैंड ऑलवेज ऑन इट्स ओन. सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस वो कंप्लीट थॉट लेके आता है, उसके लिए दूसरे का डिपेंडेंसी नहीं चाहिए उसको. सो इट कैन स्टैंड ऑलवेज ऑन इट्स ओन. फ्रेज का तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा unless and until you utilize that phrase in the sentence. So it cannot stand on its own. It requires subject, it requires finite verb, है ना, it requires non-finite verb. Otherwise ये बेटा एकदम सिंगल वर्ड है ऐसा समझो, सिंगल ऐसा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. Then clause, it may stand on its own or may not. देखो उसका मीनिंग रहेगा ना, मीनिंग क्लॉज का, तो इट फॉर्म अ सेंटेंस, तो एक सेंटेंस में फॉर्म हो जाएगा वो, मीनिंग रहेगा तो. बट इफ यू कैन से दैट इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग ऑन इट्स ओन, then it must be the part of the sentence which consists of 2 or more clauses. See the example. He saw a boy wearing a black hat. ये wearing है ना, wearing नॉन फाइनाइट है बेटा, ना नंबर दिखाता है, ना पीपल दिखाता है, ना टेंस दिखाता है ना. He saw a boy who was wearing a black hat. ये was दिखा रहा है टेंस, इसके लिए फाइनाइट वर्ब हो गया है. सब्जेक्ट हु है एंड फाइनाइट वर्ब was wearing है, तो ये क्लॉज बन जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कुछ असाइनमेंट देखते हैं हम लोग, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग को फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस समझाए कि नहीं. सो आइडेंटिफाई द फ्रेज, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. ओके, सी द फर्स्ट एग्जांपल. तपन लिव्स इन अ हाउस, तपन लिव्स इन द हाउस अक्रॉस द रोड. हियर अक्रॉस द रोड, बताओ बेटा फाइनाइट वर्ब है क्या इसमें? नहीं है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब है. ओके ओके, वर्ब भी नहीं है, फाइनाइट भी नहीं, नॉन फाइनाइट भी नहीं, hence it is a phrase. See the second one. Jyoti is a girl who has great courage. So who is the subject? Has is the finite verb. तो who has great courage ये बेटा clause हो गया. I try to learn French but in vain. बराबर ना, तो I try to learn French is a phrase. Try to learn is a phrase. The cat hid under the table. Under the table is, you can say, yes, correct, it's a phrase. No finite verb is there and you can say no subject is there. Ram was teaching when we called him. So Ram was teaching, yes, it's a clause. ये clause है. क्यों? Because it has a subject. क्या subject है? Ram. And was teaching
ये बेटा टेंस दिखाता है आपको, हेंस इट इज अ फाइनाइट वर्ब। बेटा कब से ये क्लॉज 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 चल रहा है ना, तो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लॉज। बेटा मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। पहला होगा बेटा सिंगल क्लॉज। क्या होगा? सिंगल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। थर्ड होगा मेन क्लॉज एंड फोर्थ होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। फर्स्ट वन सिंगल क्लॉज, बेटा इसका एक ही सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस नहीं होगा। नो सबऑर्डिनेटर, नो डिपेंडेंट क्लॉज इज देयर। सिंगल क्लॉज, independent clause, a phrase or a group of phrase that makes sense of its own. I lingered at the bottom of the road. बेटा दूसरा सेंटेंस कोई पार्टी नहीं है, no subordinator is there, so it's a single independent clause. See the second one, coordinate clause. Coordinate clause क्या होता है? It is joined by the conjunction, है ना, for, and, but, इससे join करते हैं हम लोग। I like mango and I like chocolate. And आया बीच में, I shivered in the mist and turned my collar up. ये and से join किया। Both the clauses are of equal status. दोनों का स्टेटस इक्वल है। ये सेंटेंस भी मीनिंगफुल है और दूसरा सेंटेंस जो बोल रहा हूँ मैं वो भी मीनिंगफुल है। आई लाइक मैंगो, इसका भी मीनिंगफुल सेंटेंस है। आई लाइक चॉकलेट, इसका भी मीनिंग है, दोनों का इक्वल स्टेटस है, हेंस इट इज अ कोऑर्डिनेट क्लॉज। थर्ड वन इज द मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज है ना बेटा, ये और सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज में नॉर्मली कोई फर्क नहीं दिखता है, दोनों में एक ही फर्क है। मेन क्लॉज रहेगा ना, उसके पीछे एक शेपुट रहेगा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और सिंगल क्लॉज सिंगल होगा। ओके, मेन क्लॉज है वो सिंगल क्लॉज जैसा ही होता है, उसको भी एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, बट इट हैज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एडेड टू इट, उसके साथ में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। बट व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज द डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंड होता है, जब तक मेन क्लॉज समझेगा नहीं तब तक सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंगलेस हो जाता है वो। सो दिस इज अ क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज one that is in some way depend on another for its meaning. वो दूसरे के ऊपर मीनिंग के लिए डिपेंड होता है। देखो हाँ, as soon as I entered the class I looked at my students. बेटा मैंने ऐसा बोल दिया ना, I looked at my students, तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस आपको समझ में आता है कि मैंने मेरे स्टूडेंट्स के सामने देखा। But when I say as soon as I entered the class, this part is incomplete thought. आप मुझे पूछोगे, sir, what had happened as soon as you entered the class? So here, this is dependent clause, and it is dependent on the second part of the sentence. I looked at the students. So one example is given here. As I did every morning, I looked up at the sky. As I did every morning is a subordinate clause, and the rest part of this sentence, I looked up at the sky, is the main clause. बेटा अभी ये कब से main clause और ये सब चल रहा है? Let's see what is independent clause. तो independent clause क्या होता है? An independent clause contains a subject as well as a predicate. I like mango, इसमें देखा बेटा I सब्जेक्ट है, like mango is the predicate, है ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने सीखा है लोअर स्टैंडर्ड में। So an independent clause contains a subject, it contains a predicate, and it also expresses a complete thought. It can stand alone, it has a complete meaning, and it can stand alone as a full sentence on its own. An independent clause is formed with subject and predicate. अभी ये independent clause है ना, it is also known as principal clause. It is also known as main clause. ये principal clause भी है, main clause भी है। कैसे? देखो, ये जो clause है ना, ये every sentence must have a main clause। पहला तो
Secondly, a main clause has a subject, a main clause has a predicate, and it expresses a complete thought. It is the only type of clause that can stand alone as a sentence. Main clause एक अकेला खड़ा हो सकता है सिंगल सेंटेंस के जैसा. A main clause can also be called an independent clause. And बेटा एक बात और नोट डाउन कर लो, मेन क्लॉज में कोई कंजंक्शन नहीं होता है. ओके, जस्ट रीड दिस. सबऑर्डिनेट क्लॉज, दिस क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंड होता है. अ क्लॉज दैट ऐड द एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द मेन क्लॉज. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है मेन क्लॉज को, बट विच कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना बेटा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक पार्ट मेन क्लॉज होता है और दूसरा पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. He believed that the earth was round. So he believed is the main clause and that the earth was round is the subordinate clause. He believed, ये पूरा complete thought देता है. लेकिन जो second part है ना, वो additional information देता है on his belief. So that the earth was round is the subordinate clause. Okay? Here the earth is the subject, was is the finite verb. Now here I am going to explain you only two types of clauses, and in this video I will explain you noun clause. So bachcha party, clause are of two type. One is main clause and the second one is subordinate clause. One is main clause and the second one is subordinate clause. This subordinate clause is also known as dependent clause, as I told you earlier. Now bachcha, this subordinate clause is further divided into three types. Number one is noun clause. ये noun clause है. इसको और आगे तीन टाइप में हम लोग देखने वाले हैं. One is that clause, if clause and WH clause. ये तीनों से हम लोग सीखेंगे. एक that से joint होता है. नॉर्मली नाउन क्लॉज है ना, उसमें that ज़्यादा मिलता है आपको. एज अ सबऑर्डिनेटर आपको that ज़्यादा मिलेगा. if भी होता है और WH क्वेश्चन भी होता है. देन बेटा WH क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेकेंड डिवीजन है एडजेक्टिव क्लॉज. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज एंड नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज. देन आएगा एडवर्बियल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. बेटा ये एडवर्ब क्लॉज है ना, ये एडवर्ब क्लॉज क्या क्या दिखाता है मालूम है? टिप्पी सिप्पी, याद है ना, चार फेस पे हम लोग करते, फेस के ऊपर चार, टी पी सी पी आर सी 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 एम. चलो फुल फॉर्म के साथ. टाइम, प्लेस, कॉज, पर्पस. टाइम, प्लेस, कॉज, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, कंसेशन, comparison and manner. So here adverb clause gives the information about time, about place, about cause, about purpose, about you can say result, about you can say condition, comparison, concession and manner. लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ नाउन सीखने वाले हैं ना ये वीडियो में. So noun clause, that clause, if clause and WH clause, ये याद रखने का. बच्चा चलो नाउन क्लॉज क्या है? डेफिनेशन नाउन क्लॉज का. नाउन क्लॉज का डेफिनेशन यही है कि वो काम करता है नाउन के जैसा. व्हाट इज नाउन क्लॉज? इट एक्ट्स एज अ नाउन, इट फंक्शंस एज अ नाउन. हाँ, इसमें बेटा सब्जेक्ट भी रहेगा और वो हमारा फाइनाइट वर्ब भी में रहेगा. ठीक है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन नाउन क्लॉज. अ नाउन क्लॉज विथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. A noun clause with a subject and a verb that functions as a noun. See the example. Whatever you wish is my command. देखो जिन क्या बोल रहा है बाजू में? तुम्हारी इच्छा वो मेरा आदेश रहेगा ना, ये मेरे लिए आदेश रहेगा. Whatever you wish is my command. So whatever is the subordinator, you is the subject of the clause and finite verb wish present tense दिखा रहा है ना. So it's a finite verb. Is my command is the main clause and the first part of the sentence is noun clause.
because it acts as a noun of the verb is. कैसा लिखने का? पहला लिखने का main clause. It is my command is a main clause. Okay. फिर लिखने का subordinate noun clause. Subordinate noun clause. Whatever you wish. Act as a subject of the verb is. Second example, I know where the treasure is. I know main clause and subordinate noun clause क्या रहेगा? Where the treasure is. तो लिखने का कैसा? Subordinate noun clause act as object of the verb noun. Noun का object का काम देता है यहाँ पे. Okay? चलो थोड़ा डिटेल में चलेंगे. बेटा noun clause क्या? एक इन शॉर्ट समराइज करेंगे. सो द नाउन क्लॉज इज द क्लॉज दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन. क्या करता है ये? नाउन क्लॉज इज अ क्लॉज दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन. ये नाउन का फंक्शन करता है. अभी देखो ना वो एक एग्जांपल है ना. ही थॉट दैट हिज डॉग वाज लॉस्ट. हियर दैट हिज डॉग वाज लॉस्ट इज अ क्लॉज. क्यों? क्योंकि देखो हिज डॉग सब्जेक्ट दिखेगा आपको इसमें फाइनाइट वर्ब वाज भी दिखेगा, तो आप इसको क्लॉज बोल दोगे. और एक है, आप इसको व्हाट से क्वेश्चन करोगे ना तो भी आंसर मिलेगा. आपका क्वेश्चन रहेगा व्हाट डिड यू थिंक, तो आपका आंसर रहेगा दैट इज डॉग वाज लॉस्ट. क्वेश्चन ये पार्ट से पूछने का, दूसरा पार्ट से आंसर रहेगा. आपने फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन पूछा व्हाट डिड यू थिंक, आपको आंसर आया सेकेंड पार्ट से दैट इज डॉग वाज लॉस्ट. तो बेटा ये हो जाएगा नाउन क्लॉज. जिधर से क्वेश्चन पूछोगे वो मेन क्लॉज, जिधर से आंसर आएगा वो नाउन क्लॉज. लेकिन क्वेश्चन आपको व्हाट से ही पूछना है. सो हियर द क्लॉज आंसर द क्वेश्चन व्हाट थॉट व्हाट, है ना. आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है थॉट व्हाट. इट मीन्स दैट इट इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब थॉट. थॉट का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, डूइंग द वर्क ऑफ द नाउन. वो नाउन के प्लेस में जा रहा है, रिसीवर के प्लेस में जा रहा है. Therefore we can say that the clause is a noun clause. That his dog was lost is a noun clause. Second example देखो, he thought of a new pen. ये of a new pen है ना, of a new pen. ये भी object है ना. It is a group of words. A new pen. ये noun का काम देता है, object का काम देता है. लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे ना what thought, इसका भी आंसर देता है. देखो दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी है, नाउन भी है एंड थॉट का आंसर भी आ रहा है. लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, एक प्रॉब्लम है. क्या? सब्जेक्ट भी नहीं है और फाइनाइट वर्ब भी नहीं है. इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब एंड इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट. तो कैसे मैं इसको नाउन क्लॉज बोलूं, है ना. इट्स नॉट अ नाउन क्लॉज, इट्स अ नाउन फ्रेज. See the two more additional example. The first one is he expected to succeed. बेटा ये noun phrase रहेगा. क्यों? to succeed में ना तो finite verb दिख रहा है आपको और ना तो आपको subject दिख रहा है, तो it's a noun phrase, not a noun clause. अभी दूसरा देखो, he expected that he would be successful. ये noun clause है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे he is the subject, would is the finite verb. Okay? Are you getting all? चलो समराइज करते हैं. नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट इज यूज्ड एज अ नाउन विद इन द मेन क्लॉज ऑफ सेंटेंस. ये पूरा एक सेंटेंस के अंदर नाउन का काम देता है. यू कैन यूज नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना. आप सब्जेक्ट के जगह पर रख लोगे, यानी डूअर के जगह पे रखोगे. आप सेंटेंस में रिसीवर के जगह पे रखोगे. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और बेटा कभी कभी क्या होता है ना, और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन में भी रखते हो. देखो whoever wins the election will speak. दिख रहा है ना आपको. चलो नेक्स्ट देखते हैं. A noun clause performs the following functions. 3 functions है उसके, याद रखो. नाउन क्लॉज एक्ट एज अ सब्जेक्ट, यानी डूअर के प्लेस में जाएगा. नाउन क्लॉज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, यानी रिसीवर के प्लेस में जाएगा. एंड नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये. ठीक है. पहला सेंटेंस देखो,
All that he said was agreed by all. All that he said was agreed by all. Here all that he said है ना is a noun clause. क्यों? Yes, correct. बेटा he subject दिख रहा है आपको. Okay. And was है वो आपका verb भी दिख रहा है. एक दूसरा बेटा ये was के एग्जैक्ट पहले आपको सब्जेक्ट का काम दे रहा है. So all that is said act as a subject of the verb was, and noun clause as an object of a verb. देखो उसका example. I hope that the experiment would be successful. I hope that the experiment would be successful. बेटा that the experiment would be successful. पहला तो ये पूरा clause है. क्यों? हाँ, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें फाइनाइट वर्ब भी है, लेकिन दैट से लेके एंड तक ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिसीवर का काम कर रहा है. सो इज अ नाउन क्लॉज एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होप. होप की जगह पर होप का ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है. एंड थर्ड सेंटेंस, यू शुड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. हियर व्हाट आई एम सेइंग एक्ट एज अ नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू. बेटा कुछ पॉइंट्स याद रखो. ऑलवेज नाउन क्लॉज कैसे फाइंड आउट करोगे? एक ये दैट क्लॉज होता है, एक ये WH क्लॉज होता है, और एक ये इफ क्लॉज होता है. वापस एक बार बोलता हूँ मैं. दैट इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस बाय ईदर बाय दैट और बाय WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन कौन से? 3 है बेटा. वाई, वॉट एंड हाउ. वाई, वॉट एंड हाउ से क्वेश्चन आया तो समझ लो बेटा कि ये आपका नाउन क्लॉज रहेगा. तीसरा दैट इज इफ से स्टार्ट होता है, ऑलवेज इंट्रोड्यूस बाय इफ. ठीक है, चलो. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. द फर्स्ट वन, अ नाउन क्लॉज इज जनरली इंट्रोड्यूस बाय दैट से इंट्रोड्यूस होता है. सानिया सेड दैट शी वॉज अटेंडिंग द पार्टी. बेटा दैट से ज्वाइंट हुआ, दिख रहा है आपको. सेकेंड, इट मे ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस बाय द क्वेश्चन वर्ड्स लाइक यू कैन से वाई, वॉट एंड हाउ. Sania wondered why Sona did not call her, and she wondered what the matter was. It may also be introduced by whether or if. They wanted to know if we were interested. Or second sentence है, Rohan asked whether I would play with him. बेटा और एक में हिंट आपको मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, और एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ. देखो कंजंक्शन फाइंड आउट करो. That, what and if. दैट, वॉट एंड इफ. देखो ये पहला सेंटेंस, सानिया सेड दैट, ये दैट के एग्जैक्ट बिफोर में सेड वर्ब दिख रहा है आपको. हाँ, दैट के एग्जैक्ट बिफोर में सेड वर्ब दिख रहा है. वर्ब है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नाउन क्लॉज. ठीक है, अभी देखो सानिया वंडर्ड. ये वंडर्ड क्या है बेटा? वर्ब है. तो वंडर्ड के बाद में जितना भी लिखा है वो हो गया नाउन क्लॉज. शी वंडर्ड व्हाट द मैटर वाज. ये वंडर्ड, वापस ये वर्ब हुआ तो व्हाट द मैटर वाज इज द नाउन क्लॉज. दे वांटेड टू नो, ये टू नो इज द वर्ब, तो बाकी का पार्ट क्या हो गया बेटा? नाउन क्लॉज. रोहन आस्क्ड वेदर आई वुड प्ले विथ हिम. ये देखो रोहन आस्क्ड क्या है बेटा? वर्ब है. तो वर्ब के बाद का जो सेंटेंस है, बाद का जो पार्ट है वो हो गया नाउन क्लॉज. ऐसे भी आप याद रख सकते हो. सो समराइज करते हैं हम लोग इसको थोड़ा. नाउन क्लॉज दैट क्लॉज है, इफ क्लॉज है एंड WH क्लॉज है. एग्जांपल्स देखते हैं बेटा थोड़ा डिटेल में. नाउन क्लॉज आई बिलीव, ये बिलीव देखो वर्ब है तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया बेटा? रिमेनिंग पार्ट नाउन क्लॉज हो गया. आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. आई नो दैट द स्टूडेंट स्टडीड देयर असाइनमेंट. नाउन क्लॉज इफ से है, नाउन क्लॉज WH से है. I don't know if my sister is at home. I don't know whether my sister is at home. I don't know whether my sister is at home or not. And I don't know whether or not my sister is at home. आप चेक कर सकते हो बेटा. नो से आगे इफ वेदर है तो ये वर्ब से बाद का सेंटेंस है वो नाउन क्लॉज बन जाएगा. I want to know what makes you laugh. ये देखो what, where and how से क्वेश्चन पूछा है. चेक करो. नाउन क्लॉज with WH words, noun clause with that and noun clause with if or whether. Here are some assignment you have to complete at your home. Identify the noun clause. The
first one, he said that he will join the intellectual academy. Second one, what you said yesterday is difficult to remember. The student said that the test was easy. The man recounted how he fought with the robbers. The boy who comes first will get the first prize. I know why Sita is behaving like this. You should remember that you have to buy a gift today. Now we know why we need to plant more trees. He wondered why everybody was ignoring him. The waiter asked whether we would order some dessert or not. I am sure that he will have a successful career. I am sure that he will have a successful career. He was not informed when he will come. I know that you like comics. 14th one, parents were worried why children did not listen them. And the teacher said that the noun clause is very easy. Isn't it, bacha? Thank you. And definitely we will learn further about the clauses. Anna, thanks for watching my video. And very soon we will meet with the next part. Thank you, thank you, thank you.